جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت ایک ملزار کی ہے۔ نعت اگر دریا ہے تو تقریر اس کی کہکشاں ہے، نعت اگر دریا ہے تو تقریر اس کی موجیں ہیں، نعت اگر کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں ہیں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم ہے۔ لہٰذا اس رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے میں درخواست کرتی ہوں بیان کے لیے، اور آپ کے روبرو ایک ایسی خطیبہ کو دعوت اسٹیج دیتی ہوں جن سے میری مراد عزیزہ شبنم خاتون ہے۔ موصوفہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ پرکیف یہ موسم ہے ہر پھول ہے مہکارا، پرکیف یہ موسم ہے ہر پھول ہے مہکارا، بارش ہے کتابت کی دلکش ہے یہ نظارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، حاضرین مجلس، اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت فاطمہ کی کنیزوں، انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکے میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ کہ زندگی کیا ہے ترکتا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکے جیسے آ کے بجھا دیا، یہ شہر مشورے غم کے ترکتا ہوا آنسو، پلک جھپکتے ہی جیسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، پلک جھپکنے کا محتاج، پلک جھپکی کے وہ آنسو مٹی میں مل جاتا ہے، یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ پانی کے بلبلے کے مانند ہے، کچھ معلوم نہیں کہ بلبلہ کب پھٹ جائے، یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ کہ جس طرح پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچاتا ہے پھر اڑ کر چلا جاتا ہے، ہم بھی اس پرندے کے مانند ہیں، ہم بھی اس دنیا کے درخت کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، پھر ہم بھی اڑ کر اپنی اصلی گھر میں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت کی طرف دھیان دیں، اس کی تیاریوں میں ہر وقت مشغول رہیں۔ کہ دنیا میں ہوں دنیا کی طلبگار نہیں ہوں، کہ دنیا میں ہوں دنیا کی طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزری ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائیں گے لیکن اس کے گراہک نہ بنیں گے، خریدار نہیں بنیں گے۔ طلبگار تو اللہ رب العزت کے ہیں، آخرت کے ہیں۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ شرع گاہ نہیں، تماشے گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے ایسا چراغا بنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اس دنیا میں جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھانا پینا اور موج میلہ کرنا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یاد رکھو، کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں اور اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ میری ماں و بہنوں، آج ہم دنیا کی شان و شوکت میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، آج ہم دنیا کی مال و دولت میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، آج ہم دنیا کی چمک دھمک میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں فرشتے عذاب والے ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، کاش کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ میری ماں و بہنوں، آج ہم اتنے عقل مند ہو گئے ہیں، عورتوں کو دیکھو یا مردوں کو دیکھو، ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ حج کے سفر پر جانا ہے، 7 بجے کی فلائٹ ہو ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کی نوجوان بہنیں کہتی ہیں جی ہمیں 6:30 بجے پہنچنا چاہیے کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ میری ماں و بہنوں، آج ہمارے معاشرے کی نوجوان بہنیں دنیا کے کام میں 1% کا رسک نہیں لینا چاہتی اور آخرت کے معاملے میں 100% کا رسک لے رہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی نوجوان یہ نہیں سوچتی کہ آخرت میں میری نیکیاں میری ضرورت سے زیادہ ہوں۔
मेरी माँ और बहनों, आज हमारे मुआशरे की किसी बहन से कह दिया जाए कि आप नमाज पढ़ा करें तो कहेंगी हमें टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन काम में निकल जाता है, हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। और कहीं शादियों में जाती हैं तो कहती है हमसे अच्छे कपड़े किसी के पास नहीं हैं। मेरी माँ और बहनों, मर्दों का भी यही हाल है। एक बंदे से एक मौलाना जी ने कहा कि आप नमाज पढ़ा करें, तिलावत किया करें, दीन के लिए वक्त निकाला करें। तो उस बंदे ने कहा मौलाना जी मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मुझे टाइम नहीं मिलता, अकेला हूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। मेरी माँ और बहनों, जो बंदा मस्जिद आने और नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, वही बंदा कुछ दिनों बाद मौलाना जी के पास जाता है और कहता है मौलाना जी दुआ कर दीजिए, मुझे एक बिजनेस मिल रहा है, अल्लाह वो बिजनेस मुझे अता फरमाए। उस बंदे से मौलाना जी ने कहा कि आप इस बिजनेस के लिए आप कहाँ से टाइम निकालेंगे? तो उस बंदे ने कहा मौलाना जी ये बिजनेस मुझे मिल जाए, मैं इसके लिए टाइम निकाल ही लूँगा। मेरी माँ और बहनों, आज हमारे मुआशरे के नौजवान एक दुकान के होते हुए दूसरी दुकान के लिए टाइम निकाल लेते हैं, एक बिजनेस के होते हुए दूसरे बिजनेस के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो आखिरत की तैयारियों के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? मेरी माँ और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों जब तुम्हारी मौत आएगी तो जन्नत के फरिश्ते भी आएंगे, जहन्नम के फरिश्ते भी आएंगे। अगर तुम नेक इंसान हो तो जन्नत के फरिश्ते तुम्हारी रूह को ले जाएंगे, और अगर तुम बुरे इंसान हो तो जहन्नम के फरिश्ते तुम्हारी रूह को ले जाएंगे। नेक इंसानों के लिए जन्नत का बाग बनाया जाएगा, बुरे इंसानों के लिए जहन्नम का घड़ा बनाया जाएगा। मेरी माँ और बहनों, कल कयामत के दिन सब खड़े होंगे, अर्श के साए के सिवा कोई साया न होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक इंसानों को जन्नत में दाखिल करेगा और बुरे इंसानों को जहन्नम में डालेगा। मेरी माँ और बहनों, आज हमसे धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आज हम धूप की वजह से बाहर नहीं निकलते, आज हमारा ज़रा सा हाथ क्या जल जाए हमें इतनी तकलीफ होती है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है, ज़रा सोचो तो सही जहन्नम का क्या आलम होगा। मेरी माँ और बहनों, ये बात इतनी वाज़ह और खुली है, और कोई बंदा या बंदी इस पर यकीन कर ले और आज से ही नेक अमाल करना शुरू कर दे तो यकीनन उसे जन्नत मिल जाएगी। और जिस बंदी ने सोचा कि मामला तो किसी ने देखा नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। मेरी माँ और बहनों, वो बंदी इस दुनिया में कुछ दिन मौज के मेले कर लेगी, लेकिन जब उसकी मौत आएगी तो उसे जहन्नम के फरिश्ते भी नजर आएंगे, उसे जहन्नम का घड़ा भी नजर आएगा। वो पछताएगी कि काश दुनिया में नेक अमाल कर लेती। मेरी माँ और बहनों, उस वक्त पछताने से कोई फायदा न होगा, उस वक्त रोने से कोई फायदा न होगा। ये मेहनत तो पहले करनी चाहिए थी। मेरी माँ और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जन्नत भी तुम जमीन और आसमान के बीच में फंसे हुए हो, एक जन्नत भी हो दोज़ख भी है। अगर हमने इस पर यकीन किया तो हमारा फायदा है, अगर नहीं किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आंखों से पट्टी हटाएगा, हम अपनी आंखों से आखिरत की हर चीज़ों को देखेंगे, हम पछताएंगे काश दुनिया में नेक अमाल कर लेते। लेकिन जब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई हो खेत, उस वक्त पछताने से कोई फायदा न होगा, उस वक्त रोने से कोई फायदा न होगा। मेरी माँ और बहनों, ये मेहनत तो हमें पहले करनी चाहिए थी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद करेंगे, या अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में जाने दे ताकि हम दुनिया में जाकर नेकी की ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा हरगिज़ नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि हम टूट कर नेकी करें। मेरी माँ और बहनों, जब मुर्गी किसी बिल्ली को आते देखे और अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से बच नहीं सकती, उसकी आंखें तब खुलेंगी जब बिल्ली आकर उसका गला दबोच चुकी होगी। मेरी माँ और बहनों, यही हमारा मामला है। अगर हमने मुलकुल मौत को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली तो मुलकुल मौत से बच नहीं सकते, हमारी आंखें तब खुलेंगी जब मुलकुल मौत आकर हमारा गला दबोच चुकी होगी। मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर माँ और बहनों की अपनी लाइफ में बड़ी प्लानिंग होती है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरी किचन ऐसी हो। कई साल इस ख्वाहिशात में लगा देती हैं, कई सालों के बाद घर बनने या खरीदने का मौका मिलता है। मेरी माँ और बहनों, बिल्कुल इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत को सामने रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामों पर अमल करना शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामों पर अमल करना शुरू कर दो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। मेरी माँ और बहनों,
ये जिंदगी थोड़ी सी है, मुश्किल में गुजर जाएगी, लेकिन जो आखिरत में मिलेगा किसी आँख ने जैसा देखा नहीं, किसी कानों ने जैसा सुना नहीं, किसी बशर के दिल में गुमान तक नहीं गुजरा। आज हम खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ों का तसव्वुर कर सकते हैं, आज हम खूबसूरत से खूबसूरत मंजर का तसव्वुर कर सकते हैं, आज हम खूबसूरत से खूबसूरत इंसान का तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें छोटी और नीची होंगी, लेकिन जन्नत के हुस्न व जमाल का मामला और जन्नत की ज़िंदगी का मामला हमारी अक्ल और सोच से भी बेहतर होगा। मेरी माँ और बहनों, अगर कोई आदमी हमारे मुआशरे की नौजवान बहनों से कह दे कि आप ये अमल करें आपकी हर बात पूरी होगी, तो औरतें सोचेंगी कि हम ये अमल करेंगे तो हमारी हर बात पूरी होगी। अगर रातों को जाकर करना पड़ता है तो वो भी कर लेंगी, मेहनत मुशक्कत बर्दाश्त कर लेंगी, अपने आप को मुश्किलों में डाल लेंगी, रातों को जाग लेंगी, नमाजों के बाद बैठकर करना पड़ता है तो वो भी कर लेंगी, देर से खाना खा लेंगी, देर से सो लेंगी, ये सोचेंगी कि अगर हम ये अमल करेंगे तो हमारी हर बात पूरी होगी। मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर हर बात पूरी करने के लिए आप इतनी कुर्बानियाँ दे सकती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे बंदों और बंदियों, दुनिया की ज़िंदगी में मेरे अहकामों पर अमल कर लो, जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगा, ऐसी ज़िंदगी दूंगा, तुम्हारी दिल की हर चाहत पूरी कर दी जाएगी। मेरी माँ और बहनों, इस छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत को पूरी कर दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में हमारी चाहत को पूरी करेगा। मेरी माँ और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे परदेसी होता है। परदेसी को जितनी सहूलियात दो, जितनी मोहब्बतें दो, जितना उसका ख्याल रखो, उसे अपने वतन की याद आती है, अपने माँ बाप याद आते हैं, अपने बीबी बच्चे याद आते हैं, अपने दोस्त अहबाब याद आते हैं। उसका दिल तड़पता है कि काश मैं अपने वतन पहुँच सकता। मेरी माँ और बहनों, हमारा वतन हमारी जन्नत है, हमें एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। न जाने हमसे पहले कितने लोग आए थे और जिंदगी गुजार कर चले गए, कुछ अरसों के बाद हम भी चले जाएंगे। कि किसी ने क्या ही अच्छी बात कही कि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, कि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, बाकी नवाइश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। पहले ज़मीन पर हमारे बाप मेहमान थे, वो चले गए, अब हम इस ज़मीन पर मेहमान हैं, हम भी चले जाएंगे। कुछ अरसों के बाद हमारी औलादें होंगी, उनके बच्चे होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम टूट कर नेकी करें। मेरी माँ और बहनों, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। क़यामत का एक दिन 1050 साल के बराबर होगा, और जिस इंसान की उम्र 100 साल है, क़यामत के एक दिन के मुकाबले में और उसकी कैलकुलेशन की जाए तो उसकी ज़िंदगी 2 मिनट की बनती है। ज़रा सोचो तो सही, आखिरत में तो हमें वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। मेरी माँ और बहनों, अगर किसी बंदी से ये कह दिया जाए कि आप 2 मिनट के लिए तंगी में बैठ जाएं, फिर आपकी हर चाहत पूरी कर दी जाएगी, तो बंदी सोचेगी कि मैं 2 मिनट के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मुझे फिर आसानी चाहिए। और कोई बंदी ये नहीं कहेगी कि मुझे 2 मिनट के लिए मस्ती करने दें, फिर मेरे साथ जो मन मर्जी हश्र कर लेना। तो ऐसे तो कोई अक्लमंदी नहीं कहेगी। मेरी माँ और बहनों, आज हमारा हाल वही है कि रोज़ों की परवाह नहीं है, नमाज की परवाह नहीं है, पर्दे की परवाह नहीं है। हदीस पाक का मज़मून है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर कदम रखती है उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं, और जब तक घर में दाखिल होती है उस पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। मेरी माँ और बहनों, फिर रोती फिरती है कि हमारी औलादों में बरकत नहीं होती, हमारे शोहर के कारोबार में बरकत नहीं होती, हमारे घरों में बरकत नहीं होती। अरे बरकत कहाँ से होगी जब तुझ पर फरिश्ते लानत भेज रहे होते हैं। मेरी माँ और बहनों, जो औरत बेपर्दा होती है उसकी हर चीज़ों से बरकत उठा ली जाती है। उसके पास माल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कभी औलाद की तरफ से परेशानी, तो कभी शोहर की तरफ से परेशानी, तो कभी सास की तरफ से परेशानी, तो कभी सेहत की तरफ से परेशानी, तो कभी जेठानी की तरफ से परेशानी, वो कोई न कोई परेशानी में मुब्तला होती है। मेरी माँ और बहनों, ये हकीकत में परेशानी पर्दे की वजह से आती है। मेरी माँ और बहनों,
ये औरतें इतनी समझदार होती हैं कि जब बच्ची पैदा होती है तो तभी से सोचना शुरू कर देती हैं कि मुझे इसका दहेज तैयार करना है। अरे वो बच्ची अभी खिलौनों में खेल रही होती है और इन्हें इसकी दहेज की पड़ी है। मेरी माँ और बहनों, ये औरतें यह नहीं सोचती कि मेरी उम्र भी तो 50 साल हो गई है, मैंने भी तो रब के सामने पेश होना है कि मैंने अपनी नेकी का दहेज तैयार कर लिया है। औरतों को दहेज की जरूरत 2 बार पड़ती है। एक जब उसकी शादी होती है, जब अपने शोहर से मुलाकात करती है, वो सोचती है मेरे पास दहेज ज़्यादा और बड़ा होगा तो मुझे शोहर के पास ज़्यादा इज्जतें मिलेंगी। और एक जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करती है, वो सोचती है कि मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ ज़्यादा इज्जतें मिलेंगी। मेरी माँ और बहनों, अगर दुनिया में खावंद ने इज्जत दी तो दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत में इज्जत नहीं दी तो आखिरत की ज़िंदगी कैसी अच्छी गुजरेगी। मेरी माँ और बहनों, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदी के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया था कि जिस बंदी ने कोई दिन बगैर मुसीबत या बगैर परेशानी के गुजारा तो गोया कि वो दिन उसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारने का मौका पाया। जब आप सोकर उठा करें तो सोच कर उठा करें कि आज मुझे किसी की ग़ीबत नहीं करनी है, आज मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, आज मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है, आज कोई कबीरा गुनाह नहीं करना है, आज गाने नहीं सुनने हैं, आज टीवी नहीं देखनी है, आज मोबाइल नहीं चलाना है, आज किसी का दिल नहीं दुखाना है। जब आप ऐसा करोगी और आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन गुजारा तो गोया कि आपने वो दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारने का मौका पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दिन हमें भी ज़िंदगी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम गुनाहों से बच जाएं और नेकी की ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। और मौत तो बिला आखिर आनी ही है और मौत के वक्त इंसान को 100 साल की ज़िंदगी भी यूँ महसूस होती है जैसे सुबह का वक्त गुजरा और शाम का वक्त गुजरा। मेरी माँ और बहनों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो 1050 साल गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे पैगम्बर आपने ज़िंदगी को कैसा पाया? तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैंने ज़िंदगी को ऐसा पाया जैसे एक मकान का दरवाज़ा है, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे से निकल आया। मेरी माँ और बहनों, ज़रा सोचो तो सही, उन्हें 1050 साल ज़िंदगी यूँ महसूस हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम आपने मौत को कैसा पाया? तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे जिंदा बकरी है, जिंदा हालत में उसकी खाल उतार दी जा रही है, जिंदा हालत में जो खाल उतारने की बकरी को तकलीफ होती है, मुझे मौत के वक्त ऐसी तकलीफ हुई थी। मेरी माँ और बहनों, ज़रा सोचो तो सही, ये तकलीफ हमारे ऊपर भी गुजरेगी। और कुरान करीम में ये नहीं फरमाया कि तुम्हें मौत आएगी, बल्कि कुरान करीम में ये फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शख्स को मौत का जायका चखना है। अब जायका कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, कुछ मालूम नहीं कि हमारी मौत के वक्त क्या मामला हो। मेरी माँ और बहनों, इमाम गरानी फरमाया करते थे कि मौत बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है, कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कभी कभी ये फरमाया करते थे, ऐ दोस्त तुझे क्या मालूम बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका है जिससे तेरा कफन बनने वाला है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि शादियों में मशगूल हैं, उनके कफन का कपड़ा बाजार में आ चुका है। मेरी माँ और बहनों, ऐसा न हो कि हम भी अचानक मौत के मुंह में दबोच लिए जाएं, हम अक्लमंदी दिखाएं और आज से नेकी की जिंदगी गुजारें। मेरी माँ और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुलकुल मौत आने से पहले कोई पैगाम भेज दिया करो। तो मुलकुल मौत ने फरमाया, पैगाम तो बहुत भेजते हैं लेकिन लोग समझते नहीं। जैसे किसी की बिनाई कमजोर हो जाना, ये मौत का पैगाम है कि मौत करीब है। किसी के बाल सफेद हो जाना, ये मौत का पैगाम है कि मौत करीब है। किसी की जवानी की हालत में चले जाना, ये दूसरों के लिए मौत का पैगाम है कि मौत करीब है। मेरी माँ और बहनों, किसी की दाढ़ में कीड़ा लग जाना, ये मौत का पैगाम है कि मौत करीब है। किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाना, ये मौत का पैगाम है कि मौत करीब है। आज हम दुनिया की रंगीनों में पड़े हुए हैं और जब मौत आती है तो हम मौत के लिए तैयार नहीं होते। मेरी माँ और बहनों,
दुनिया के अंदर मौत की तैयारी करना और आखिरत के लिए तैयार होना बड़ी नसीबी की बात है। सहाबा करीम का ये आलम था कि जब मुलकुल मौत को देखा करते थे तो फरमाया करते थे, ऐ मुलकुल मौत, मैं तुम्हारा 20 साल से इंतजार कर रहा था, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो मौत का इस कदर तैयार रहा करते थे मौत के लिए। मेरी माँ और बहनों, यही बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि दुनिया में जिंदगी ऐसे औजारों जैसे परदेसी होता है या रास्ते में चलने वाला मुसाफिर होता है। इसलिए ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना है। मुसाफिर को पता होता है कि मुझे आगे सफ़र करना है, हमें भी पता है कि हमें यहाँ से गुजर कर अपनी असली वतन की तरफ सफ़र करना है। मेरी माँ और बहनों, लिहाजा मौत की खूब तैयारी कर लें। और मौत की तैयारी करना कोई वंजश का काम नहीं है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज कर ली तो मौत के लिए तैयार हो गए। नहीं, मौत के लिए तैयार होना इसे कहते हैं कि जिस्म के हर उज़ू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना करना, जिस्म के हर उज़ू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत के मुताबिक बना लेना। जब आप ऐसा कर लोगी तो आप मौत के लिए तैयार हो जाओगी, फिर आपके लिए सब मालूमात आसान हो जाएंगे। मेरी माँ और बहनों, आपने जितने भी गुनाह कर चुकी हैं उसकी तौबा कर लें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले। एक बनी इसराइल का एक आदमी था जो 99 कत्ल कर चुका था। उसने एक सूफी से कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, कि मेरी तौबा की कोई सूरत है? तो उस सूफी ने फरमाया कि तौबा तौबा, 99 कत्ल कर चुका है, कितना खूंखार जानवर है। तो उस बंदे को सूफी पर गुस्सा आया। उसने कहा कि 99 उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं 99 कत्ल तो पहले कर चुका हूँ, क्यों न पूरे 100 ही कर लूँ। उसने उस सूफी का कत्ल कर दिया। मेरी माँ और बहनों, कुछ अरसों के बाद उस बंदे को ख्याल आया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मेरी माँ और बहनों, उसने एक आलिम से कहा कि मेरी तौबा की कोई सूरत है? तो आलिम ने कहा, क्यों नहीं, आप फला बस्ती में जाए, वहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, आप उनके पास जाना, वो आपको तौबा के कलिमात पढ़वाएंगे। मेरी माँ और बहनों, वो बंदा ये सोचकर उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। अल्लाह की शान तो देखिए, उसे रास्ते में मौत आ गई। अल्लाह की शान तो देखिए, उसे रास्ते में मौत आ गई। जब मौत आई तो जन्नत के फरिश्ते भी आए कि इसे हम लेकर जाएंगे, और जहन्नम के फरिश्ते भी आए कि इसे हम लेकर जाएंगे। दोनों में बहस होने लगी। अरब के करीम ने फरमाया कि फासले की पैमाइश की जाए। हदीस पाक में आता है कि जिस जगह वो बंदा गिरा था वो दरमियान की जगह थी, आधा आधा फासला था। मेरी माँ और बहनों, लेकिन वो मरते मरते उसकी लाश लेकी की बस्ती की तरफ गिर गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और उसे जन्नत अता फरमाई। मेरी माँ और बहनों, हम तो जीते जागते इंसान हैं, अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों न कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा रहीम और करीम है। और जिस बंदी ने जितने भी गुनाह किए हैं, अगर उसने तौबा सच्ची दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। वक्त बहुत कम है और काफ़ी तालिबात अपना प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी की ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मौसूफा। माशाल्लाह मेरी माओ बहनों, यकीनन मौसूफा ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच था। यकीनन मौसूफा सच कह रही थी। आज हमारी माएँ बहनें यही कहती हुई नजर आती हैं कि आज नहीं कल से नमाज पढ़ना शुरू करेंगे।